ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد کی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہیں سرخیاں۔ وزیر دفاع نے چین کو بالواسطہ طور پر دی وارننگ۔ راجناتھ سنگھ نے کہا ہندوستان کا پڑوسی ملک کی سرزمین پر قبضہ کرنے کا نہیں ہے کوئی ارادہ۔ حیدرآباد میں نیشنل اینیمل ریسورس فیسلٹی سینٹر کا آغاز۔ ہندوستان کو بائیو میڈیکل شعبے میں سیر فہرست بنانا مرکزی حکومت کا نصب العین۔ مرکزی وزیر مانسکھ مانڈویا کا بیان۔ کسی شے پر ٹیکس میں نہیں کیا گیا اضافہ۔ مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتا رامن کی وضاحت۔ دالوں کی بھوسی پر جی ایس ٹی کم کرنے جی ایس ٹی کونسل کا فیصلہ۔ اور ریاستی حکومت مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کر رہی ہے سخت محنت۔ کے ٹی آر کا دعویٰ، جلد ہی سبھی ضلع ہیڈ کوارٹرز میں آئی ٹی ہبز قائم کرنے کا منصوبہ۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چین کو بالواسطہ طور پر انتباہ دیا کہ جو سرحدوں پر اشتعال انگیز کارروائیاں انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے سپر پاور بننا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنے پڑوسی ممالک پر قبضہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا دنیا میں سپر پاور بننے کی جستجو میں جارحیت اور دوسرے ممالک کی سرزمین پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دہلی میں منعقدہ انڈسٹری کانفیڈریشن کی 95ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک سپر پاور بن کر دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ وزیر دفاع نے ان فوجیوں کی کوششوں کی ستائش کی جو ملک کے دفاع کے لیے سرحدوں پر اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ گلوان ہو توانگ سیکٹر ہماری دفاعی افواج نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا ہے۔ کہہ چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نہیں تو وہ باتیں نہیں بولوں گا جو کہ میں نے سنسد میں نہیں کہی ہیں۔ چاہے گلوان ہو تو توانگ، ہماری سینا نے جس شورے اور پراکرم کا پریچے دیا ہے، جس شورے اور پراکرم کا پریچے دیا ہے، اس کی جتنی بھی پرشنسا کی جائے وہ کم ہے۔ اداہرن کے لیے مہنگائی کی سمسیا ایک پرمکھ مدے کے روپ میں۔ مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے ہندوستان اور چین کے سرحدی علاقے توانگ کا دورہ کیا۔ کرن رجیجو نے اس علاقے کا معائنہ کیا جہاں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کی جھڑپیں ہوئی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ توانگ کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ ہندوستانی فوج کے بہادر سپاہی وہاں تعینات ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے تبصرے کو کرن رجیجو نے ٹویٹر کے ذریعے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نہ صرف ہندوستانی فوج کی توہین کر رہے ہیں بلکہ ملک کی شبیہ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت مانسکھ مانڈویا نے کہا کہ اگر کورونا جیسے تباہ کن مسائل پیدا ہوتے ہیں تو نیشنل اینیمل ریسرچ فیسلٹی سینٹر کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مرکزی وزیر نے حیدرآباد کے شامیر پیٹ کے جینوم ویلی میں بائیو میڈیکل ریسرچ کے لیے نیشنل اینیمل ریسورس فیسلٹی مرکز کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مانسکھ مانڈویا نے کہا کہ جینوم ویلی کا نیا کیمپس وزیراعظم کے آتم نربھر بھارت کے ویژن کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نئی ادویات اور ویکسین کی تیاری اور جلد تشخیص سے متعلق ٹیسٹوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। नाप के माध्यम से देश में वर्ल्ड हेल्थ को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। नाप के माध्यम से क्लिनिकल ट्रायल के लिए देश में बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। नाप के माध्यम مرکزی وزیر صحت و طب مانسکھ مانڈویا نے کہا کہ صحت کے شعبے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ مانسکھ مانڈویا نے حیدرآباد کے نواحی علاقے میں واقع کنوا شانتی ونم میں منعقدہ طبی طریقہ کار پر 3 روزہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس کانفرنس میں ملک اور بیرونی ممالک کے ڈاکٹروں، ماہرین طب اور ہیلتھ ورکرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے مانسکھ مانڈویا نے کہا کہ یوگا اور دھیان سمیت بہت سے صحت کے طریقے قدیم زمانے سے ہمارے طرز زندگی میں جاری ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ ایلوپیتھی ہی صحت کے تمام مسائل کا واحد حل نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر طبی طریقہ کار پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ انٹیگریٹو میڈیسن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ہم دیش میں
सभी एम्स में इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी चालू कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर काम भी हो, रिसर्च भी हो और भविष्य में इंटीग्रेटिव मेडिसिन के आधार पर हम देश को स्वस्थ रख पाए। मरकजी वजीर फिनांस निर्मला सीतारमण ने वाज़ेह किया है कि किसी भी शय पर टैक्स में इजाफा नहीं किया गया है। जीएसटी काउंसिल के 48वें इजलास में ये बात सामने आई है कि अगरचे तंबाकू और गुटखे पर टैक्स काउंसिल के इजलास के एजेंडे में था, लेकिन कोई फैसला नहीं किया गया। मरकजी वजीर ने यह भी बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और केसेस पर जीएसटी की बात नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इजलास में दालों की भूसी पर जीएसटी कम करने का फैसला किया गया है। And therefore the rest would be carried on to the next, hopefully an in-person meeting. And importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 रियासती वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी KTR ने इंकशाफ किया है कि जल्द ही हर जिला हेडक्वार्टर में बहुत टी हब्स कायम किए जाएंगे। फिलहाल वरंगल, खम्मम और करीमनगर में IT हब कामयाबी से चल रहे हैं। इस तरह जल्द ही निजामाबाद, महबूबनगर, नलगुंडा, सिद्दीपेट और आदिलाबाद जिला में भी IT हब शुरू किए जाएंगे। रियासती वजीर ने ट्विटर के जरिए यह ऐलान किया। रियासती वजीर फिनांस हरीश राव ने रियासत में आबपाशी के मामूली मरम्मती कामों को जीएसटी से इस्तिस्ना देने की जीएसटी काउंसिल से मांग की। हरीश राव ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की ज़ेर सदारत 48वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में शिरकत की और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रखे गए मुतालबात से काउंसिल को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि रियासत में माइनर इरीगेशन के तहत 46,000 आबी ज़खायर हैं, जिनके जरिए 25 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाता है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत गुर्दे के मरीजों को डायलिसिस खिदमात पहुंचाने में सर फहरिस्त है, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले रियासत में सिर्फ 3 डायलिसिस के सेंटर्स मौजूद थे। अब उनको बढ़ाकर 102 कर दिया जा रहा है। रियासती वजीर ने आज सुबह निम्स हॉस्पिटल में नई सहूलियात का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में हरीश राव ने अस्पताल में मुनक़िदा होने वाली वेस्कुलर सर्जरी कॉन्फ्रेंस का भी आगाज किया। పేద ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ₹1 ఖర్చు లేకుండా సింగిల్ యూస్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ద్వారా డయాలసిస్ చేసేటువంటి సేవల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం తెచ్చుకున్నాం. ఈ రోజు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు కూడా దీన్ని చూసి కాపీ చేస్తా ఉన్నాయి. మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఈ పద్ధతిని అమలు చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య తమిళనాడులో కొత్తగా వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గారు మేము తెలంగాణ డయాలసిస్ మోడల్ని అడాప్ట్ చేస్తున్నాము అని హీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇన్ తమిళనాడు. ఈ ఫ్రీ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी के तबसरे की मजम्मत की है। राहुल के तबसरों से मुल्क की फौज की तौहीन हुई है। उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बोलने के अंदाज से चीन और पाकिस्तानी लहजा जाहिर होता है। बीजेपी ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, जरदारी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तबसरा की मुखालिफत करते हुए मुल्क गिर एहतजाज किया है। बीजेपी कायदीन ने हैदराबाद के बशीरबाग में बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे से लेकर टैंक बॉन्ड में BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक एहतजाजी रैली निकाली। इस एहतजाज में साबिक रुकन असम्बली चिंतला रामचंद्र रेड्डी, NVSS प्रभाकर, यूथ मोर्चा के रियासती सदर भानु प्रकाश और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी लीडर और कारकुनों ने पाकिस्तान और बिलावल भट्टो के खिलाफ नारे लगाए। అనేక రకాలుగా సహాయం చేసేటువంటి పాకిస్తాన్లోకి చొరబడి సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసే ఘనత కూడా భారతదేశం అనే విషయాన్ని పాకిస్తాన్ గుర్తుంచుకోవాలి। PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव को एक खुला खत लिखा है। अपने मकतूब में उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मुलाजिमतों की मतलाशियों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। रेवंत रेड्डी ने तनकीद की कि TRS की 8 साला हुक्मरानी ने बेरोजगारों को सख्त मायूस किया।
बांग्लादेश पहले टेस्ट में शिकस्त से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। चौथे दिन के खेल के अख्तिताम पर बांग्लादेश की टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए। शकीबुल हसन ने 40 और मेहदी हसन मेराज ने 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ने चूंकि एहतियात से खेला ताकि कोई और विकेट न ले। आखिरी सेशन में हिंदुस्तानी गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिल सकी। बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए आखिरी 5वें दिन 241 रन बनाने होंगे। 5वें दिन का पहला सेशन दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम है। चौथे रोज भी बांग्लादेश के ओपनर शैंटू और जाकिर हसन ने तसलसल के साथ खेल का मुजाहरा किया। फिलहाल खबरों बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वजीर दिफा ने चीन को बिलवास्ता तौर पर दी वार्निंग। राजनाथ सिंह ने कहा, हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पर कब्जा करने का नहीं है कोई इरादा। हैदराबाद में नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी सेंटर का आगाज। हिंदुस्तान को बायोमेडिकल शोबे में सैर फहरिस्त बनाना मरकजी हुकूमत का नसबुल आइन। मरकजी वजीर मानसुख मांडविया का बयान। किसी भी शय पर टैक्स में नहीं किया गया इजाफा। मरकजी वजीर फिनांस निर्मला सीतारामन की वजाहत। दालों की भूसी पर जीएसटी कम करने जीएसटी काउंसिल का फैसला। और रियासती हुकूमत मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कर रही है सख्त मेहनत। KTR का दावा, जल्द ही सभी जिला हेडक्वार्टर्स में IT हब्स कायम करने का मंसूबा।